शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। Hello all, welcome to our MVPM webinar series. आज हमारे साथ है अतुल भाऊ लाहोटी, प्रेसिडेंट MVPM, सुनंदा भाभी राठी. We'll also have Ram Kumar ji Rathi joining us. सुनंदा भाभी के चिरंजीव फाउंडेशन के ट्रेनर जो हमें आगे डेमोन्स्ट्रेशंस बताएंगे जल नीति के और ब्रीदिंग टेक्निक्स के. और इस मौके पर वी जस्ट लाइक टू एक्नॉलेज कि MVPM is not just making efforts in terms of education or having hostels, but कोविड के इस दौर में लोगों तक हम सही माध्यम से सही इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हैं, इसकी भी प्रबंधता MVPM ने की है. तो हम शुक्रगुजार हैं कि such initiatives are being taken. और without further ado, I'd quickly like to introduce सुनंदा भाभी. इनका परिचय हम सबको पहले से ही ज्ञात है, पर फिर भी जब भी मैं इनका परिचय देखता हूँ कुछ ना कुछ चार चीजें ऐड ही होती है. So I'll just quickly introduce her. I've been following her ardently with yoga. उनके काफी वेबिनार्स भी मैंने अटेंड किए और काफी फायदा भी हुआ है. और आज के इस वेबिनार में उन्होंने हमें खास रिक्वेस्ट की है कि सब लोग अपना योगा मैट साथ में लेकर बैठे. और ब्रीदिंग टेक्निक्स इज नॉट जस्ट प्राणायाम. ओके, स्टे ट्यून टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट. सुनंदा भाभी, an inspirational yoga teacher, researcher and an exceptional mastery in yoga for obesity. इन्होंने चिरंजीव फाउंडेशन which is affiliated to व्यासा बैंगलोर फाउंड किया है. बहुत एक्टिव है योगा इस फील्ड में. She is also active earlier as an astrologer. We know her to be active member of MVPM. She aims to create certified yoga trainers, conducting workshops for corporates, students, school children, online, offline, and has also a PhD from Sevasa with the subject of effects of integrated approach of yoga therapy on adolescent obesity. She is a life member of the prestigious Yoga Indian Association and convener of Standing Committee of Finance. Currently, she is the advisor at MVPM and she is ex-president and trustee of MVPM.
like to welcome you, ma'am, and I'd like you to take over from here. Thank you, Vinay. At the offset, let me thank organizer, because why this workshop? I feel this is the right time. When we all are panic, what is happening? This corona, we are worried, and MVPM is always there to help. They are doing a lot of activities, which you all are aware, but what is more important is providing food who are suffering to those family. And next, if we can provide oxygen when it is not available in hospitals, ventilators are not available. So what is the solution? Solution is to help yourself. Yes, we are with you, because yoga practices help, yoga technique help. So it's a welcome from Chiranjeev Foundation to all the participants who are part of this workshop. I have with me Maya Chuttar. She is our senior faculty at Chiranjeev Foundation. She has done her MSc from SVyasa, Yoga Adhyapak and Yoga Pandit from Yoga Vidya Gurukul Nasik. She is qualified national eligibility test, that is NET. So she is ready to perform her research. I welcome Maya. Breathing technique. You know, we all are confused. हम सभी को लगता है कि प्राणायाम यानी breathing technique. But let me tell you, scientifically, breathing techniques are different than pranayama. Now, because of this corona and virus, आप सभी लोग YouTube पे जाते हैं, अलग अलग ढूंढते हैं, अलग अलग प्राणायाम देखते हैं और करने लगते हैं. आपको साइंटिफिकली सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम आ गया है हमारे एंशिएंट इंडियन साइंस को हम जान ले, उसका बेस जान ले. वेद उपनिषद से ये आए हैं और मॉडर्न साइंस ने इसको रिसर्च करके प्रूव किया है. तो ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स देन प्राणायाम. जैसे योगा बोला कि लोगों को लगता है योगासन. सो योगासन इज नॉट ओनली योगा. योगा इज अ वेरी बिग टर्म which include lot of things like some Sesh Patanjali कहते हैं अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है योग. तो आइए ये ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जाने और कैसे करना है. आज मैं सिंपल टेक्निक्स आपको देने वाली हूँ जो आप कर सकोगे, और मैं चाहती हूँ कि आप भी करोगे जब ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया जाएगा. हमारा योग का सेशन हमेशा प्रेयर से शुरू होता है. मैं आप सभी को बोलती हूँ, टेक अ डीप ब्रीथ इन, क्लोज योर आईज, अडॉप्ट नमस्कार मुद्रा, कूल काम क्वाइट, माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स. आप सुनिए, मैं बोल रही हूँ. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. Om Shanti Shanti Shanti. Feel the resonance of the prayer throughout your body. Drop down your Namaskar Mudra. Slowly open your eyes. May God protect us both, आप सभी और मुझे. May God nourish us both. May we both work together for coming 60 minutes with great energy, and may our scientific technique enlighten and fruitful you. May we not hate each other. Om, peace, peace, peace. So be with me, because everybody has realized W ko hata do. Health is wealth,
and health is more important than wealth. So take charge, and it's time for you to take charge of your health and start working upon it. We all are aware, body has a healing capacity. हमारी बॉडी अपने अंदर से हमें हील करती है. हम लोग मॉडर्न जमाने के हैं, थोड़ा सा भी खांसी सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, हम लोग मेडिसिन लेना चाहते हैं. हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है और इसको हमें कैसे जागरूक करना है, कैसे एक्टिव करना है और कैसे अपने आप को हील करना है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, ये ब्रिज है between the conscious and subconscious, voluntary and involuntary, or in general body and mind. What is voluntary and what is involuntary? Involuntary breathing is a natural breathing. What it happens, आप जानते हैं बच्चा पैदा होते ही सांस लेता है, वो सांस लेते रहते हैं, हम सभी सांस लेते हैं, which is an involuntary thing. What is voluntary? Regulating that breath in a systematic scientific way. हम जिस ब्रेथ को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसके ऊपर वॉलेंटरी कंट्रोल लाना यानी ब्रीदिंग टेक्निक होता है. जैसे भूख लगना इनवॉलेंटरी है, हम खाने को बैठते हैं तो वॉलेंटरी होता है. तो आज आपको देखना है कि हाउ टू कंट्रोल अवर इनवॉलेंटरी ब्रेथ विथ अवर वॉलेंटरी एक्शन. So using the voluntary control, we change the involuntary functions by taking charge and learning scientific method. What are the principles? Very easy to understand the principle that when you breathe slowly, बहुत धीरे से सांस लेना और धीरे से सांस छोड़ना. उसके बाद with awareness, पूरा ध्यान अपने सांस पे रखना. ब्रीथ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इस प्रक्रिया के पास विथ अवेयरनेस हमें ध्यान रखना है. उसके बाद सिंक्रोनाइजिंग द मूवमेंट विद द ब्रीदिंग. जो भी हम आपको बताएंगे, जो बॉडी की मूवमेंट आपको बताएंगे, उस मूवमेंट को आपको सिंक्रोनाइज करना है ब्रेथ के साथ. तो पहले हो गया हम स्लो ब्रेथ करेंगे, उसके बाद विथ अवेयरनेस करेंगे, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मूवमेंट करेंगे कि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं है. अभी भी आप देख रहे हैं, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं और ध्यान कहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं होता है. आपको विथ अवेयरनेस सब कुछ करना है, क्योंकि माइंड बॉडी टुगेदर वर्क्स एंड गिव यू रिजल्ट. इफ योर माइंड बॉडी एंड एक्शंस आर नॉट टुगेदर, यू विल नॉट गेट रिजल्ट. एक्सहेलेशन शुड बी लॉन्गर देन इनहेलेशन. ये प्रिंसिपल सबको पता है कि जो हम इनहेल करते हैं उससे एक्सहेलेशन का स्पीड ज्यादा चाहिए. एंड एबिलिटी टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द ब्रीदिंग रेट. हमें जब चाहिए तब हमारा ब्रीदिंग स्लो होना चाहिए, जब चाहिए तब फास्ट होना चाहिए. ये हमें सीखना है. और जब भी हम ये सब करेंगे, स्लोनेस, अवेयरनेस, सिंक्रोनाइजेशन, एक्सहेलेशन, मोर, हमारा शरीर ढीला चाहिए, टाइटनेस नहीं चाहिए बॉडी में. क्योंकि आप देखते हैं ब्रेथ करते वक्त, यदि आप ब्रीदिंग करते वक्त यदि टाइट मसल्स रखते हैं तो मसल के ऊपर स्ट्रेन आता है और ब्रीदिंग का फायदा नहीं होता जो होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रीदिंग टेक्निक के? हमारे ये जो लोब्स है ना, इसका फुल्ली यूटिलाइजेशन, ये लंग का पूरा यूटिलाइजेशन ब्रीदिंग के साथ होना चाहिए, जो जनरली नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ऊपर के ऊपर ब्रीदिंग करते हैं. अभी आप जानते हैं आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं, लोगों के पास स्मार्टफोन होते हैं और ये स्मार्टफोन पे ये एक एक घंटे का अलार्म लगाते हुए मैंने स्टूडेंट को देखा है कि 1 घंटे से मुझे स्लो ब्रीथ करना है, यानी 59 मिनट्स वो फास्ट ब्रीदिंग करेंगे. तो धीरे धीरे आप जब ये ब्रीदिंग सीखोगे तो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ये स्लो हो जाना चाहिए, तो ही आपके ये सारे लोब्स को आपका सांस पहुंचता है और आपका ब्रीदिंग यूनिफॉर्म चाहिए. सो आपको ऑल लोब्स को यूटिलाइज करना है, ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करना है, स्लो ब्रीदिंग करना है. अभी हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको स्लाइड के जरिए एक्सप्लेन करूंगी, फिर हमारे योगा ट्रेनर आपको वो प्रैक्टिस दिखाएंगी और उसके बाद मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी और आप प्रैक्टिस करोगे.
बहुत आसान ब्रीदिंग टेक्निक्स हम आपको सिखा रहे हैं। ये सेशन सुनने का नहीं है। अब समय आया है कि हमें हमारे ब्रीदिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करना है। हम जो भी ब्रीदिंग टेक्निक्स है ये साइंटिफिकली डिजाइन किए हैं इस व्यासा ने, आयुष ने इसको एक्सेप्टेंस दिया है फॉर कोविड। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ट्राई टू कीप योर वीडियो ऑन। आपको यदि नी प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। पहले आप सुनिए, स्लाइड को देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन देखिए और फिर कीजिए। आर यू रेडी? आर यू विथ मी? Let's do. Be on your mat if you are there, or you can sit on chair and also do. Let's go. Maya, be ready. We are starting our breathing technique session. My dear participants, breathing is different than pranayam. Let us start. पहला जो टेक्निक है ये हैंड्स इन आउट ब्रीदिंग है। इसकी स्थिति ताड़ासन होती है। आप चेयर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। जो वर्किंग लोग हैं वो आप लंच के पहले इस प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो चेंज होता है वो आपके ब्रेथ रेट में चेंज होता है, आपके आर्म, आपके शोल्डर, आपकी बैक और आपका नेक, ये सब पे यदि इफेक्ट हो रहा है तो आपने ये हैंड इन आउट ब्रीदिंग प्रॉपर किया है। अब माया आपको ये करके दिखाएंगी। इसकी 2 पोजीशन है, वो आपको करके दिखाएंगी। माया इज स्टैंडिंग एंड शी इज शोइंग। आप लोग मुझे बता देना आप उसको देख पा रहे हैं या नहीं है। यस माया, माया हैंड इन आउट ब्रीदिंग। वी कैन सी यू माया, यू कैन स्टैंड एंड शो। What is happening, Maya? I have unmuted you, Maya. Please speak. See, firstly, you have to join hand. Maya, you are unmuted. You show. Yeah. Sunanda Bhabhi, your microphone is not connected. Can you also give commentary while she does the actions? Yes, yes. Sure. Now, hand in out breathing का जो position होता है वो standing position होता है। आपको दोनों हाथ सामने लाने हैं और उसके बाद चेस्ट एक्सपांड करते हुए आप साइड में हाथ ले जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बदल आ रहा है। आपके आर्म, शोल्डर, सब, नेक, इस सब पे स्ट्रेच आ रहा है और सिंक्रोनाइज ब्रीदिंग हो रहा है। ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस, सिंक्रोनाइजेशन, expand your chest when you are taking hands out. आप 5 राउंड अभी कर सकते हैं रोज। आपको इसके 10 राउंड से शुरू करके आपको 20 से 25 राउंड तक लेके जाने का है। इससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथन हो जाती है। हैंड इन आउट ब्रीदिंग। अब मैं आपको शेयर करती हूँ। आप लोग करेंगे। Stretch out your arms in front in level with your shoulders and bring the palm together. While inhaling, सांस लेते हुए आपको आर्म्स को स्प्रेड करना है साइड में in horizontal plane. While exhaling, bring the arm forward with the palm touching each other. Is it clear? आप लोग करेंगे तो तुरंत आपको दिखेगा कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव हो रही है, आपका ब्रेथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन का स्पीड बहुत सिंपल, सादा, नॉर्मल है और आपकी बाकी पूरा शरीर ये रिलैक्स है। इसको कहते हैं हैंड इन आउट ब्रीदिंग। आपके ध्यान में आ गई होगी ये प्रैक्टिस। इसके बाद है, ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग होता है। ये हैंड स्ट्रेच 3 लेवल पे होता है, एट 90 डिग्री, एट 135 डिग्री एंड एट 180 डिग्री। हर राउंड आपको 5 बार करना है। आप डेमोन्स्ट्रेशन
देख लीजिए। उसके पहले मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिखा देती हूँ। While inhaling, stretch the arms straight out in front of your body so that the arms are at the shoulder level. आपके आर्म्स जो है ये एट शोल्डर लेवल चाहिए। एट द सेम टाइम ट्विस्ट द हैंड, ये जो पाम है इसको ट्विस्ट करना है आपको आउटवर्ड, और फुल्ली स्ट्रेच द आर्म्स बट डू नॉट स्ट्रेन, मतलब आपके ऊपर स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। और व्हाइल एक्सेलिंग रिवर्स द प्रोसेस, ये इनहेलेशन हो गया, ये एक्सहेलेशन हो गया, ये इनहेलेशन हो गया, ये एक्सहेलेशन हो गया। नाउ माया आपको 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री दिखाएंगी, और फिर आप लोग इसके राउंड्स करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना फायदा आपको होता है। यस माया, माया यू आर, हाँ। नाउ फर्स्ट यू शो देम एट 90 levels. Inhale, correct. इनहेलेशन करते हुए आपको स्ट्रेच लाना है, और एक्सहेलेशन करते हुए आप अपने शरीर के पास आपके दोनों हाथ लाएंगे। इसको हैंड इन आउट स्ट्रेच कहते हैं, हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। ये हो गया 90 डिग्री का। आप लोग जो खड़े होकर कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सम्यक, जयश्री, माया अभी आपको 135 डिग्री दिखा रही है। 135 डिग्री यानी हमारे फोरहेड के लेवल तक हाथ जाता है। आप देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale। अभी थर्ड स्टेप जो है वो 180 डिग्री। While inhaling, stretch your hands up, smile on your face, do not stretch, exhale, down. Slow, silent, synchronization of breathing with your hand movement. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now all participants will do at 90 degree. Maya is demonstrating first at 90 degree. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now at 135 degree, all participants will be doing, आप सब करोगे. Inhale at your forehead level. Exhale. जिनको समझ में आ गया है वो आंख बंद करके यदि करेंगे तो इसका फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि आपका पूरी बॉडी, माइंड और आपका इनहेलेशन आपके साथ रहेगा. इनहेल, exhale, inhale, exhale. Now at 180 degree, all are going to do. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Slow synchronized movement with body awareness, with breath awareness, mind-body synchronization, smile on face. This helps your complete respiratory system. All your system is getting activated. और हम जब ये लेते हैं तो हमारे लोब्स को
पूरे लोब्स को अच्छी से हमारी सांस मिलती है। अभी माया इसके बाद आपको एंकल स्ट्रेच ब्रीथिंग बताएंगी। एंकल स्ट्रेच यानी यही है कि ऊपर तक जाना है, मगर हमारे जो एंकल है उसको स्ट्रेच करेंगे, और बाकी का मूवमेंट आप उनका नहीं देख सकते तो मैं बताऊंगी। इनहेल करते वक्त ऊपर जाना है और एंकल को स्ट्रेच करना है। ध्यान में आ रहा है? व्हाइल इनहेलिंग गो अप, स्ट्रेच योर एंकल। आपको दिखेगा कि एब्डोमेन के ऊपर से लेकर शोल्डर तक पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका इफेक्ट हमको मिलता है। दिस इज नोन एज एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। This helps in opening the lower, middle and the upper part of the chest, balancing of prana, promote rhythmic breathing, increase awareness of breathing, improves concentration and calm down your mind. Aggression भी कम हो जाता है। ये हमने अभी देखा एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। मैं आगे जा रही हूँ। इसके सेम है, हमारी लंग की पूरी कैपेसिटी इससे इंक्रीज होती है। अभी ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन माया विल शो यू। दिस इज नोन एज अ डॉग ब्रीदिंग। डॉग का ब्रीदिंग सबको पता है। डॉग बहुत फास्ट ब्रीथ करता है। हमेशा यदि आप फास्ट ब्रीथ करते रहे तो हमारी लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता है डॉग की लाइफ कितनी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। मगर ये प्रैक्टिस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करती है, इसीलिए इसको एज अ प्रैक्टिस आपको करना है। अभी डॉग ब्रीदिंग कैसे होता है मैं जस्ट पढ़ के बताती हूँ, बाद में आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। Maya, you simultaneously do, I can see your video. Place the palms of the hand on the ground beside the knee. Place the palms on the ground beside, ये जो knee है, ये पोजीशन डॉग की ले ली है आपने। ये दोनों हाथों को आप अपने यहाँ पे रखोगे, नीज के बाजू में। Make the spine slightly concave. ये जो आप माया की आपको दिख रही है, ये स्लाइटली कॉन्केव करनी है। उसके बाद में आपको आपका मुंह ओपन रखना है। आपका मुंह ओपन रख के टंग को बाहर निकालना है। पुश आउट योर टंग, जैसे डॉग की होती है। और फिर रैपिड ब्रीदिंग करना है। इस प्रकार से। अब मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ ताकि आप पूरा स्क्रीन देख सकोगे। आप देखिए, आपका बैठने का तरीका, नी के पास आपके दोनों पाम आने चाहिए, लिटिल कॉन्केव रहेगा। उसके बाद मुंह खुला करके टंग को बाहर निकालना है, और ये एब्डोमेन पे जहां माया ने हाथ रखा है वहां आपका ब्रीदिंग आउट करते वक्त प्रेशर आना चाहिए। नाउ स्टार्ट माया, फास्ट। या अब आपने कभी बच्चे को सोते हुए ब्रेथ करते हुए देखा होगा। बच्चा हमेशा पेट से ब्रेथ करता है, तो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम एब्डोमिनल के ऊपर से शुरू जो हो जाती है, उससे इस ब्रीदिंग में बहुत फायदा होता है। आपको इस प्रैक्टिस को शुरुआत करते वक्त 10 बार करना है, उसके बाद 20 बार। माया, अगेन यू शो। दिस इज नोन एज अ डॉग ब्रीदिंग। आप उसके एब्डोमेन पे ध्यान दीजिए, और आपका ये एब्डोमेन जैसा फ्लैप हो रहा है वैसा होना चाहिए, तो ही आपकी सिस्टम सुधरने वाली है और साइंटिफिकली ब्रीदिंग आपका होने वाला है। ये क्लियर हो गया है? इसके लिमिटेशंस है। आपको हाई बीपी है, एपिलेप्सी है, तो आप नहीं करोगे। इसके बेनिफिट्स है, इंक्रीज डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन एंड एम्प्टी योर लंग्स। आपके पूरे लंग्स एम्प्टी हो जाते हैं और डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। रैपिड एक्सेलेरेशन क्लींस द लंग। पूरे लंग में से आपके जो एयर बाहर पड़ती है उससे
क्लीनिंग होता है, हमारा लंग क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई ड्रॉप ब्रीदिंग आपको एज अ प्रैक्टिस करना है। रेगुलर में यदि आपका फास्ट ब्रीदिंग है तो आपको उसको कंट्रोल करना है। आपको रेगुलर ब्रीदिंग जो है, जो पूरा दिन चलता है, वो स्लो ब्रीदिंग करना है। डॉग ब्रीदिंग इज देयर टू क्लियर, empty your lungs and cleanse the lungs. Increase awareness of middle and lower part of lung. हमारा जो मिडिल पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है लंग्स का, उसमें अवेयरनेस आता है ब्रेथ का, ये करने से। इसके बाद में ये भी प्रैक्टिस को कभी आपने सुना नहीं होगा, ये पेट तो बहुत लोगों को प्यारा है, रैबिट। रैबिट को ब्रीथ करते वक्त आपने ऑब्जर्व किया होगा, छोटे बच्चे तो हमेशा करते हैं। ये रैबिट ब्रीदिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद माया आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगी। पहले हमने डॉग ब्रीदिंग सीखा है, अब हम रैबिट ब्रीदिंग देख रहे हैं। रैबिट ब्रीदिंग में आपकी जो स्थिति है, पहले वज्रासन में आपको बैठना है, उसके बाद में आपके दोनों नी टुगेदर बेंड फॉरवर्ड रहेंगे। आप देख रहे हैं कि पहले जब आप डॉग ब्रीदिंग कर रहे थे तो आप बैठे थे डॉग की तरह, अब आपको नीचे बेंड होना है रैबिट की तरह है, और आपके जो फोर हार्म्स है उसको फ्लोर पे रखना है, फ्लैट ऑन द ग्राउंड। फिर आपका जो ध्यान है वो बराबर बीच में आना चाहिए। वो आपको माया दिखाएंगे कि कैसे हैंड का ये लेके आपको बीच में देखना है, और फिर रैपिडली ब्रीथ करना है थ्रू माउथ ओनली, बट नाउ यू आर यूजिंग अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। डॉग ब्रीदिंग में आपने एब्डोमिनल का यूज किया था, मगर रैबिट ब्रीदिंग में आप अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट यूज करोगे, तो दिस विल क्लियर योर अपर पार्ट। आप अभी देखोगे उसको एक्टिवेट कैसे होता है। इसको थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। रैबिट ब्रीदिंग इज यूजफुल फॉर थोरैसिक ब्रीदिंग। एब्डोमेन इज प्रेस्ड ऑन द थाई। हम जिस तरीके से बैठते हैं तो हमारा एब्डोमेन पूरे थाई पे प्रेस हो जाता है, तो आपका थाई पे प्रेशर आने से आपका जो पूरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग है वो बंद हो जाता है, और ब्रीदिंग अपर पार्ट से ऑटोमेटिक होता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि पोजीशन यदि करेक्ट रैबिट के लिए तो अपने आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपका बंद हो जाता है। ये क्यों, किसका हेल्प मैं बता देती हूँ ताकि आप देख सकोगे प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन और आप कब करो। ये एक्यूट एपिसोड ऑफ अस्थमा के लिए बहुत यूजफुल है। इट्स डेवलप वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ लंग्स, ओपन अप प्राणा ब्लॉक। हमारे अंदर के जो ब्लॉक्स होते हैं प्राणा में, हमारा ब्रेथ जो है वो रेगुलराइज क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक्स रहते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता है। तो रैबिट ब्रीदिंग से हमारे ब्लॉक्स ओपन अप हो जाते हैं और आप काम डाउन माइंड हो जाता है, एग्रेशन निकल जाता है, आपका रिएक्शन निकल जाता है और माइंड को काम डाउन हो जाता है। सो माया विल शो यू दिस। वज्रासन में बैठी है। नाउ माया विल टेक पोजीशन ऑफ रैबिट। माया, कैन यू हियर? I think her connectivity has gone. हाँ, now she's here. हाँ, now उसका पोजीशन देखिए, उसका एब्डोमेन का पूरा प्रेशर। बीपी वाले कर सकते हैं? Somebody has asked, बीपी वाले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अभी आप देखिए एब्डोमिनल पूरा उसके इससे प्रेस हो गया है, तो जब भी वो ब्रीदिंग करेगी एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगा नहीं जो डॉग ब्रीदिंग में हुआ था। नाउ यू कैन सी ये पूरा थोरैसिक ब्रीदिंग है, चेस्ट से ब्रीदिंग होता है, और उसका पोजीशन देख लीजिए, टंग बाहर निकालेंगे और आप थोरैसिक रीजन से ब्रीदिंग करोगे। देखिए आपकी मूवमेंट कैसी है। माया, अब आप पोजीशन भी बदल लो, आड़ी है उसको सीधी करो। लोगों को सिटिंग पोजीशन ध्यान में आ गई है। अभी देखिए वो कैसी बैठी है, टंग को बाहर निकाला है और थोरैसिक ब्रीदिंग चल रहा है। रैबिट ब्रीदिंग इज अ थोरैसिक ब्रीदिंग, इट इज नॉट एन। आपको जिन लोगों को नी का प्रॉब्लम है उन लोगों को हम चेयर प्रैक्टिस बताएंगे। माया सिट, ऐसे बता दो रैबिट ब्रीदिंग विदाउट सिटिंग ऑन चेयर। इस तरीके से आप बैठोगे, मैं बैठी हूं, ये बाहर निकाला है, एब्डोमिनल को आपने नीचे अपने पैरों से
आपको प्रेशर देना है और थोरैसिक ब्रीदिंग करना है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप चेयर पे बैठ के जैसा मैं कर रही हूं आप कर सकते हैं, बट आपके एब्डोमिनल मूवमेंट रैबिट ब्रीदिंग में नहीं होती है, थोरैसिक मूवमेंट होती है। इज इट क्लियर? ओके, we'll go to next breathing technique. This is a tiger breathing. टाइगर ब्रीदिंग एक मांजरासन होता है आसन, यदि आपको पता है तो टाइगर जैसे ब्रेथ करता है, वो एक ब्रीदिंग टेक्निक है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन यू कैन सी अ डेमोन्स्ट्रेशन। टाइगर ब्रीदिंग में ये दो पोजीशन होते हैं। एक होता है आपके पीठ को ऐसा आपको कॉन्क्वे करना है और बाद में आप ऊपर उठ के उसको करोगे। तो पहला ये पोजीशन रहेगा। Ensure that you are comfortable with the posture before starting. आपका posture comfortable चाहिए। Coordinate the movement with breathing. Eyes closed after watching demonstration. और practice with awareness. अंदर breath का क्या हो रहा है, कौन से पार्ट पे प्रेशर आ रहा है, इसके पास ध्यान रहेंगे। टाइगर ब्रीदिंग में आर्म्स एंड थाइज की मूवमेंट नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड का इसमें यूज किया जाता है और ये ब्रीदिंग बहुत ही अच्छा रहता है, आपका स्टैमिना बढ़ाता है। अभी मैं ये स्टेप बता देती हूँ, देन माया विल शो। फर्स्ट आप वज्रासन में आओगे। लीन फॉरवर्ड एंड प्लेस द हैंड फ्लैट ऑन द फ्लोर इन लाइन विद द शोल्डर। Maya, you show also if somebody can see, and then we will have your full screen. So come to Vajrasan, lean forward and place the hand flat on the floor in line with the shoulder with finger pointing forward. दोनों fingers जो है pointing forwards. Arms, thighs and heels should be above one shoulder width apart. आपका जो ये है शोल्डर, ये जो हाथ का डिस्टेंस है, ये 1 शोल्डर अपार्ट चाहिए। हाथ में भी और पैर में भी एक शोल्डर का अपार्ट डिस्टेंस चाहिए, जो माया ने अभी लिया है उसके हाथ में और पाँव में। While inhaling, raise the head and look at the ceiling. Maya, raise your head and look at the ceiling. Depress the spine, making it concave. अभी इसका स्पाइन देखिए concave हो रहा है। Okay, while exhaling, arch the spine upward and bend the head downward, bringing the chin toward the chest. आप अब ये पोजीशन देख लीजिए। Can you see this? At the same time, exhaling the arch, spine upward and bend the head down, bringing the chin toward the chest. She is showing, मैं मेरा screen stop करती हूँ ताकि you will able to see Maya properly. आप ये देखिए ये कैसा कॉन्केव हो रहा है। हैंड और शोल्डर में एक हाथ का अंतर लेके आपको ये टाइगर ब्रीदिंग करना है। सिंक्रोनाइजेशन होगा ब्रीदिंग का और आपके पोजीशन का। दिस डॉग ब्रीदिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल. इट इंक्रीजेस फुल कैपेसिटी ऑफ योर ब्रीदिंग सिस्टम. आप साथ में करेंगे तो ही आप मुझे कुछ सवाल कर पाओगे एंड में। आपको ये करना है। हमने आपको ये जो तीनों टेक्निक बताए हैं, डॉग ब्रीदिंग, रैबिट ब्रीदिंग और टाइगर ब्रीदिंग, these are very very important breathing techniques which will improvise your respiratory system. मांजरासन ब्रीदिंग भी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया, आंचल ने मुझे पूछा है। ये जो हमारा आसन है इसको मांजरासन भी कहते हैं, टाइगर आसन भी कहते हैं, आप टाइगर ब्रीदिंग कह सकते हैं। पर मांजरासन के ब्रीदिंग में और टाइगर के ब्रीदिंग में फर्क होता है, पोजीशन सेम रहती है। इसके बेनिफिट्स है अवेयरनेस एंड मास्टरी ओवर ऑल 3 सेक्शंस ऑफ द चेस्ट। हमारे चेस्ट के तीनों सेक्शन के ऊपर इसकी मास्टरी आती है। आपके लंग्स कंप्लीट एम्प्टी हो जाते हैं जब आप कॉन्क्लेव करते हो,
आपके लंग्स एम्प्टी हो जाते हैं। हार्मोनाइज द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो आज कोरोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ये जो मसल्स है रेस्पिरेशन के, इसमें हार्मनी लाना। अगेन काम डाउन ऑफ द माइंड होता है, आपकी हिम्मत बढ़ती है, आपका पेशेंस बढ़ता है। फीडबैक ऑफ एयरवे स्टेटस बाय साउंड इन केस ऑफ अस्थमैटिक, अस्थमैटिक के लिए आपका जो साउंड है उसमें चेंज हो जाता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस्थमैटिक पेशेंट ऑल्सो। अब इसके बाद हमने 3 ब्रीदिंग के टेक्निक सीखे। मुझे लगता है ये आपके लिए नए टेक्निक्स थे। अब हम आएंगे शशांकासना ब्रीदिंग। अभी रैबिट ब्रीदिंग, टाइगर ब्रीदिंग और डॉग ब्रीदिंग में वज्रासन की स्थिति है, वही स्थिति इसमें कंटिन्यू रहती है। ये भी सेटिंग आसना का ब्रीदिंग है। इसमें शशांक आसन जो है ये रिलैक्सेशन आसन है, इसे मून आसन भी कहते हैं। ये जो मैंने दिखाया है कैसे रिलैक्स है, देखिए बेबी पोज भी इसको कहते हैं, जो छोटे बच्चे बैठते हैं। तो ये पोजीशन से आपको एक स्मूथ आपका ब्रीदिंग होता है। इसमें आपको एक्सेल एंड कोलैप्स द शोल्डर्स करने हैं। उसके बाद में अपार्ट योर नीज टू अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर ऑन द एब्डोमेन एंड चेस्ट। बैठ के हमारा एब्डोमेन थोड़ा सा बाहर आ जाता है, तो यदि हम हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर आ रहा है तो थोड़े हमारे पैर को हम दूर करके एब्डोमिनल का प्रेशर निकाल सकते हैं जब हम नीचे जाएंगे। जिनको शशांक आसन आता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है उन्होंने शशांक आसन ब्रीदिंग कैसे करना है वो अभी देखना है। दिस सिंक्रोनाइजेशन ब्रीदिंग विद क्लोज आईज विल हेल्प यू मोर, एंड अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग आपको होता है। टेक द हैंड्स बिहाइंड द बैक, आपको पीछे ले जाने हैं। मेक द फीस्ट ऑफ योर हैंड, आप दोनों हाथ की फीस्ट बनाओगे। उसके बाद में राइट हैंड से आपने लेफ्ट हैंड की फीस्ट को पकड़ा है। अब शोल्डर को रिलैक्स बनाते हैं, हमारे शोल्डर टाइट हो जाते हैं। तो जैसे ही फीस्ट बन गई है शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। फिर हम लोग इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे। व्हाइल इनहेलिंग गो बैक, and while exhaling try to touch your floor. This is known as a शशांकासन। तो स्लोली एक्सेल करना है, स्लोली झुकना है। आपको झुकना जो है वो आपका लंबर रीजन से झुकना है, पीठ में से नहीं झुकना है। आप पूरा डेमोन्स्ट्रेशन माया का देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि बेंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी स्लोली यू हैव टू बेंड एंड गो डाउन। While inhaling, slowly come up to the vertical position and slightly lean backward. जैसे हम पीछे जाके इनहेल करके फिर हम आगे आए थे, उसी प्रकार से आप आसन में से बाहर आओगे। अभी ये फीस्ट देखिए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ा है। यदि एब्डोमेन का प्रेशर आपके नीज पे आ रहा है तो आपको थोड़ा पैर में अंतर आप ले सकते हैं। टोज जो है वो देखिए आपके, इसकी हील्स थोड़ी अलग है मगर टोज एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा पीछे जाके इनहेल करके डाउन आते वक्त एक्सलेशन करना है। बेंडिंग इज फ्रॉम लंबर रीजन, नॉट फ्रॉम द बैक। प्रॉपर बेंडिंग। एक बार आने के बाद आप इसको क्लोज आई से करोगे तो इसका बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। ये हो गया हमारा शशांकासन ब्रीदिंग। क्लियर हो गया है तो एटलीस्ट 3 बार तो भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपको इसके बेनिफिट समझने वाले हैं कितने हमारे मसल्स रिलैक्स हो रहे। इसके बाद में हम लोग आएंगे सुपाइन पोस्चर। प्रोन पोस्चर में एक भुजंगासन ब्रीदिंग होता है, वो हम ब्रीदिंग टेक्निक्स में अभी कोरोना के लिए उसको इंक्लूड नहीं किया, इसलिए मैंने भी यहाँ नहीं लिया है। सुपाइन पोस्चर यानी आप बैक के ऊपर सो जाओगे। उसके बाद में रिलैक्स इन, फर्स्ट यू विल हैव टू रिलैक्स इन शवासना, आराम से रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद में आप एक पैर को ऊपर लेके आओगे ब्रीदिंग करते वक्त, ब्रीद आउट करते वक्त नीचे लेके जाओगे। उसके बाद दूसरे पैर को ऊपर लाओगे और नीचे लाओगे। दिस इज डन ऑल्टरनेट लेग्स।
left and right. Collapse completely in Shavasana, आराम से. उसके बाद में अब आपको हाथ ऊपर लेके एक लेग को ऊपर लेना है. फर्स्ट यू कैन टेक लेफ्ट और राइट लेग while inhaling. Inhale. Slowly लेना है. Observe the blood flow in your leg. Exhale. Another leg. Inhale. Slow movement. Synchronize. Awareness. Exhale. ये हो गया alternate breathing, leg raise. अभी माया will show you both leg breathing also simultaneously. फिर हम आपकी practice लेंगे. She is showing alternate legs. Participants, you practice with her. Practice के बगैर फायदा नहीं होने वाला. Simple technique है, मगर करने का तरीका ध्यान में आना चाहिए. Slow with awareness, proper raise, proper inhalation. Inhalation से exhalation ज्यादा slowly करना है. आंखें बंद करके करते हैं. क्वेश्चन के आंसर बाद में दिए जाएंगे. जो भी क्वेश्चंस है I can see in chat and Vinay will monitor that and then I will sort out your problem. So this was an alternate straight leg breathing. Maya, you show them both leg raise breathing. अब आप सब लोग भी बोथ लेग से ब्रीदिंग कीजिए. आप देखिए आपको जल्दी रहती है हर बात की. आसन करने की जल्दी, ऑफिस जाने की जल्दी, खाने की जल्दी. योगा आपके सारे मूवमेंट्स में स्लो डाउन करता है आपको. और जब आप काम डाउन करते हैं आपकी बॉडी मूवमेंट्स को, आपके ब्रेथ को, आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा माइंड बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है. ब्रेथ का सिंक्रोनाइजेशन होता है. और जब प्राण, माइंड और बॉडी एक साथ आते हैं तब आपको ध्यान में आएगा कि हमारे शरीर पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट अच्छा होता है. प्राणा इज अ वाइटल एनर्जी. प्राणा ही आप में चैतन्य लाता है. और अब सब शुरुआत और झगड़ा हमारा प्राणा से चल रहा है. इस प्राणा को एक्टिवेट करने का ये तरीका है. इसके जो ये आपको बताया है, आर्म साइड वे बाय साइड ऑफ द बॉडी, डू नॉट बेंड द नीज, डू नॉट डिस्टर्ब द लेग, लाइंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, डू नॉट रेज द लेग बियॉन्ड 90 डिग्री. आपके 90 डिग्री तक नहीं जाते हैं तो आप नहीं लेके जाएंगे. खींचातानी करनी नहीं है. नीज में पैर को मोड़ना नहीं है. जितना जाएगा उतना ही. ये ऐसा मोड़ना नहीं है उसको. और यदि 90 डिग्री नहीं जा रहे तो आप यहीं पे रुकेंगे और नीचे जाएंगे. मगर आपको करना सिस्टमैटिकली है. ओके. एब्डोमिनल फैट इससे कम हो जाता है, बॉडी टोनिंग हो जाता है और हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इसका फायदा होता है. ये बोथ लेग का दिखा दिया है. सिंगल लेग का भी आपको दिखा दिया है. अभी सबसे यस माया विल कम टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शनल ब्रीदिंग, विभागीय श्वसन. ये जो सेक्शनल ब्रीदिंग है बहुत अच्छा साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है. 3 सेक्शन में ब्रीदिंग आपको सिखाया जाएगा. इसमें बैठने की स्थिति वज्रासन है. जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ सकते हैं.
सीधी मांडी डाल के बैठ सकते हैं, और आप चेयर पे बैठ के भी ये सेक्शनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग आप साइंटिफिकली इसको देख लो, उसके बाद आपको करना है। इसमें 4 मुद्रा का उपयोग किया जाता है। जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपको दिखाएंगे तब ये चिन्ह मुद्रा होती है। चिन्ह मुद्रा को ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। सो 3 सेक्शन में ब्रीदिंग होता है, एब्डोमिनल, उसके बाद थोरैसिक रीजन, और उसके बाद कल्विक्युलर रीजन। तो आप पहले देखोगे चिन्ह मुद्रा है, उसके बाद चिन्मय मुद्रा है, उसके बाद आदि मुद्रा है, और उसके बाद ब्रह्म मुद्रा है। ये 4 मुद्रा आपको लेके ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है। अब हम एक एक देखेंगे। ये मुद्रा आपको शायद पता भी होगी, बट हर मुद्रा को आपको सेक्शन के साथ जोड़ना है। आपका सिटिंग पोस्चर ये वज्रासन में बहुत अच्छा होता है। जो बैठ के वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में करेंगे। बाकी जैसे मैंने बताया, आप कंफर्टेबल बैठ जाइए, और माया कर रही है उसको देखिए। मैं एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ ताकि यू विल एबल टू सी कंप्लीट 3 लेवल ऑफ ब्रीदिंग इन अ फ्लो। दिस वाज अ कंप्लीट ये। सबसे पहले आपको माया एब्डोमिनल ब्रीदिंग दिखाएगी। एब्डोमिनल ब्रीदिंग है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। यहाँ पे पूरा जो ब्रीदिंग है ये लेवल पे होता है। ये लेवल यानी हमारा ये जो लोब्स है इसके नीचे इसका बहुत फायदा होता है। आप इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद थोड़ा सांस को रोकेंगे, जिसको अंदर लेने के बाद थोड़ा रोकोगे, और फिर आप एब्डोमिनल बल्ज आउट करोगे। यानी जब भी आप ब्रीद इन करोगे आपका एब्डोमेन बाहर आता है। आप रेगुलर ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते वक्त हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यदि हम ब्रीद इन कर रहे हैं और हमारा एब्डोमेन भी अंदर जा रहा है तो यू आर डूइंग साइंटिफिकली रॉन्ग ब्रीदिंग। नेचुरल ब्रीदिंग में भी आपका एब्डोमेन ब्रीद इन करते वक्त बाहर आता है और ब्रीद आउट करते वक्त ही अंदर जाता है। तो व्हेनेवर इन एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप ब्रीथ अंदर लोगे, आपका ये एब्डोमिनल लेवल बल्ज आउट हो जाएगा। ओके, और फिर जब आप एक्सेल करोगे तो एब्डोमेन अंदर जाएगा। यदि आप रिवर्स कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। सो प्लेस द हैंड रेस्टिंग ऑन द थाइज इन चिन्ह मुद्रा। ये है चिन्ह मुद्रा है। इसको ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं आपके कंफर्ट से। ओके, ये हो गया एब्डोमिनल ब्रीदिंग। माया, you show this, then I will go to next breathing. चिन्ह मुद्रा है, उसने अपने पैरों पे उसको रखा है। अब इनहेल करते वक्त एब्डोमेन बाहर आएगा, वो थोड़ा रुकेगी। उसके बाद एक्सेल करते वक्त एब्डोमेन अंदर जाएगा। अब आप देखोगे तो यहां मूवमेंट नहीं होने वाली है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट की मूवमेंट सिर्फ एब्डोमिनल लेवल पे होने वाली है। ये सेक्शनल ब्रीदिंग है, एक ही सेक्शन से हम ब्रीथ कर रहे हैं। पूरा की पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम यूज नहीं कर रहे। माया स्टार्ट। ये देखिए एक्सेल किया अभी उसने। इनहेल करते वक्त बल्ज योर एब्डोमेन, एक्सेल टेक योर एब्डोमेन इन। Inhale, bulge your abdomen out. Exhale, take your abdomen in. Synchronize inhalation, exhalation. While breathing, abdomen will come out like a balloon. While exhaling, abdominal will go inside. There is no movement of your chest region. This is known as abdominal breathing. सेक्शनल ब्रीदिंग में का पहला पार्ट है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये अभी आपको दिखाया चिन्ह मुद्रा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इनहेल करते वक्त एब्डोमेन बाहर, एक्सेल करते वक्त एब्डोमेन अंदर। दिस इज नोन एज अ एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज अ थोरैसिक ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। मध्यमा जो है, ये जो एब्डोमिनल का होने के बाद ये जो मध्यमा है, ये मध्यमा का ये ब्रीदिंग है। प्लेस द हैंड रेस्टिंग ऑन द थाइज इन चिन्मय मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में इंडेक्स को प्रेस किया था, चिन्मय मुद्रा में ये तीनों उंगलियां अंदर जाती है। इनहेलिंग एक्सपांड द चेस्ट। जैसे एब्डोमिनल में आपने पेट को एक्सपांड किया, इसमें आप चेस्ट को एक्सपांड करोगे। पूरा जो केज है हमारा चेस्ट का, वो आपको ऐसा आगे आता हुआ दिखेगा। आप
ऐसा मत समझिए कि लेडीज लोगों ने चेस्ट आगे नहीं लाना है, इट इज अ बैड मैनर्स। इसमें आपको चेस्ट को आगे लाना है, एक्सपैंड करना है और पूरे ब्रेथ को हमारे चेस्ट में भर के लेना है, और बाद में जब छोड़ोगे तब चेस्ट अंदर जाएगी। ओके, तो वाइल हम एक्सेल करेंगे हमारी चेस्ट पूरी रिलैक्स हो जाएगी और हमारे जो चेस्ट के वॉल्स है वो रेस्टिंग पोजिशन में आ जाएंगे। रिपीट दिस ब्रीदिंग साइकिल 5 times. नाउ माया विल शो यू दिस ब्रीदिंग। अभी चिन्मय मुद्रा देख लीजिए आप। बोथ हैंड्स ऑन योर लैप, थाइस पे रख लीजिए, मांडी के ऊपर हाथ को रखना है। While inhaling, you will expand your chest and fill the chest with breath. पूरा सांस हमारे चेस्ट में आएगा। देखिए उसकी चेस्ट कैसे एक्सपैंड हो रही है। Observe expansion of chest while exhaling. Completely relax your chest. Inhale, expand your chest. Breath को hold करना है। Exhale, breathe out. Inhale, expand your chest. Exhale, relax your chest. Slow movement, close eyes. Complete chest के मसल्स आपके रिलैक्स हो गए हैं एक्सहेलेशन के साथ। ये हो गया हमारा अब इसमें आपको एब्डोमिनल मूवमेंट नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। शुरुआत में हो सकता है कि एब्डोमिनल मूव करेंगे, धीरे धीरे कंट्रोल आएगा और सिर्फ चेस्ट आपका कंट्रोल होएगा। अभी थर्ड है अपर लोअर। अपर पार्ट जो है, यानी अभी एब्डोमेन हो गया, चेस्ट हो गया, नाउ अपर पोर्शन आपका जो है उसका ये ब्रीदिंग है। ओके, तो इसको आद्य कहते हैं, अपर लोम कहते हैं। सिट इन वज्रासना इन मेडिटेटिव पोस्चर, प्लेस द हैंड रेस्टिंग ऑन द थाइज इन आदि मुद्रा। ये आदि मुद्रा है, थंब अंदर। मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा लेते ही आपको प्रेशर पता चलेगा कि हमारा जो पूरा मूवमेंट है, ये हम जब प्रेशर लाते हैं तो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन तक आप सुनते हैं किसी किसी के ब्रेन तक सांस नहीं जा रही है। हमें आदि मुद्रा में हाथ रखने हैं। इनहेलिंग, रेज द कॉलर बोन्स। अभी हमने एब्डोमेन कर लिया, चेस्ट कर लिया, अभी ये कॉलर बोन्स है और शोल्डर है, इसको अपवर्ड लेके जाना है और बैकवर्ड लेके जाने का है। While exhaling, drop down the shoulder. While inhaling, raise the shoulder. आपके पूरे कॉलर बोन और ये ऊपर आएंगे और फिर नीचे जाएगा, और ये 5 times आपको साइकिल रिपीट करना है। This is the upper lobe. अभी आप देखेंगे आदि मुद्रा। Keep your both hand on your lap. आदि मुद्रा में हाथ। मुद्रा करते वक्त आपका थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए अंगूठे पे। इसके बाद में इनहेल, शोल्डर अप, कॉलर बोन अप, एक्सहेल, exhalation is more than inhalation. Inhale, exhale, अब आप साथ में कीजिए। कॉलर बोन और शोल्डर को उठाना है। अवॉइड एब्डोमिनल मूवमेंट एंड अवॉइड योर चेस्ट मूवमेंट। एब्डोमिनल और चेस्ट को रिलैक्स करते हुए आपको शोल्डर्स को और कॉलर बोन को ऊपर उठाना है और फिर नीचे लेके आना है। इनहेलेशन के वक्त ऊपर उठेगा, एक्सहेलेशन के वक्त नीचे, एकदम रिलैक्स। अब इसमें आपको देखना है कि जो पार्ट को हम मूवमेंट दे रहे हैं वही पार्ट मूव हो रहा है, बाकी हमारा फेस रिलैक्स है, फेस पे स्ट्रेच नहीं है, फेस के ऊपर स्माइल है। अब फुल योगिक ब्रीदिंग मैं सिर्फ बताती हूँ, करना बहुत डिफिकल्ट है।
बहुत दिन के प्रैक्टिस के बाद ही आप ये फुल योगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। माया आपको बताएगी, इसमें तीनों लेवल का ब्रीदिंग होता है, एब्डोमिनल, चेस्ट और शोल्डर रीजन, और छोड़ते वक्त हम शोल्डर रीजन, एब्डोमिन और ऐसा छोड़ते हैं। आप देखिए फुल योगिक ब्रीदिंग, माया विल शो यू। ये आपको करना नहीं है क्योंकि आपको आएगा नहीं। इसमें ब्रह्म मुद्रा ली जाती है, आदि मुद्रा जो है वो दोनों पास में जब हम रखते हैं, हमारे पैंक्रिया के ऊपर थोड़ा सा हम रखते हैं, तब वो अच्छा रहता है। ओके, तो आप देखिए अभी एब्डोमेन, चेस्ट और कॉलर बोन तीनों का होता है। उसके बाद तीनों की मूवमेंट छोड़ते वक्त है। दिस इज नोन एज अ फुल सेक्शनल ब्रीदिंग। इसको योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं क्योंकि योगी लोग ऐसा ब्रीथ करते हैं, तीनों लेवल पे उनका ब्रीथ होता है। हमारा अभी तक कंट्रोल नहीं आया है, इसलिए हमने एक एक लेवल को देखा है। अब ये यहाँ पे हमारे साइंटिफिक ब्रीदिंग टेक्निक्स खत्म हो रहे हैं। इसके बाद में आपको जलनीति का सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। जलनीति करने में बहुत ही आसान है, आपको रोज जलनीति करनी है। कोरोना के लिए सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे मस्त उपाय है जलनीति। जलनीति को ये 25 या 30 रुपए का पॉट, अभी इसकी कीमत कोरोना में बढ़ गई होगी तो पता नहीं है, क्योंकि सभी चीजों की कीमतें जिसके जिनकी जरूरत है बढ़ चुकी है। ये एक नीति पॉट लगता है, आपको थोड़ा सा लुकवार्म वाटर लगता है। उस लुकवार्म वाटर में आपको थोड़ा सॉल्ट डालना पड़ता है। सॉल्ट यानी सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, वो आप डालोगे। और इसके लिए आपको दोनों बाजू से इसको करना है। पहले आप एक नोस्ट्रिल से करोगे, वो नोस्ट्रिल पूरा क्लीन हो जाएगा, फिर आप दूसरे नोस्ट्रिल से करोगे। इससे आपका ब्रीदिंग ट्रैक जो नोस्ट्रिल्स है ये पूरे क्लीन हो जाते हैं। पूरा आपका ये जो पोर्शन होता है ये क्लीन हो जाता है, गला भी साफ हो जाता है और आपका ब्रीदिंग बहुत अच्छा होता है। काफी रिसर्च इस पे हो रहा है। ये हमारा इंडियन एंशिएंट षट क्रिया में की पहली क्रिया है जल नेति। ये आप रोज करोगे, सुबह उठने के बाद आपका ये पहला काम होगा कि आप जलनेति करोगे। अब जलनेति करने के पहले आपको कपालभाति थोड़ा करना पड़ता है। आपको अभी माया डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली है, आपको ये सिर्फ देखना है। जलनेति क्रिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ षटकर्मा, 6 एक्शंस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आज तक हम प्यूरिफाई अपने आप को कर ही नहीं रहे थे। कोरोना ने सिखा दिया है कि हमें अपना क्लींजिंग करना है, प्यूरिफाई करना है, उसमें की ये एक क्रिया है। हम जब कभी आगे जाएंगे तो हम आगे की 5 क्रिया भी आपके लिए लेंगे। अभी इंपॉर्टेंट है कोरोना में जलनेति। Pouring water in one nostril and flushing out through the other nostril with the help of special equipment called neti pot to keep the nasal passage clean. Jalneti can remove mucus from the nasal passage and sinuses, allowing air to flow without obstruction. This helps to relieve allergies, colds, sinus, etc. It claims to prevent and manage our diseases. Now ये मैं स्क्रीन रोकती हूँ क्योंकि माया आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगी। इसमें खड़ा कैसे रहना है, टिल्ट कैसे होना है, ये आपको देखने से समझेगा। अब ये नेति पॉट है, ये लूक वार्म वाटर है, उसके अंदर उसने सॉल्ट डाल दिया है। आपके घर में जो बेसिन होता है वो बेसिन के सामने आप इसको करोगे तो ज्यादा अच्छा है। जलनेति की पहले आपको कपालभाति करना होता है थोड़ा सा। अभी देखिए मुंह खुला रखना है, आगे झुकना है, टिल्ट योर हेड, एक साइड में आपका हेड टिल्ट करेंगे। अब पानी एक नोस्ट्रिल से जाएगा और जब सांस मुंह से लेंगे तो दूसरे नोस्ट्रिल में से पानी बाहर आने लगता है। आप देखिए एक नोस्ट्रिल से पानी अंदर जा रहा है, दूसरी नोस्ट्रिल से बाहर गिर रहा है और यहाँ मुंह से उसका सांस लेना चालू है।
यदि आप मुंह बंद करोगे तो आपका पानी बाहर आने वाला नहीं, आपकी पोजीशन गलत है तो आपका पानी नाक गाल पे से अंदर जाएगा। सो पोजीशन शुड बी करेक्ट, स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। पूरा क्लींजिंग होता है हमारा पैसेज जो है, दोनों नोस्ट्रिल से हम इसको करते हैं। ल्यूकवार्म वाटर, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ, फ्लशिंग वाटर विथ अदर नोस्ट्रिल कंप्लीटली, पूरा पानी बाहर आ जाता है। और एक बाजू की जलनीति क्रिया खत्म होने के बाद जो पानी अंदर बचता है उसको आपको निकालना है। अभी देखिए, अब वो पानी निकाल देगी, नहीं तो आपको साइनस जैसे होता है। एक साइड का पानी पूरा, ये देखिए, पूरा निकालना है। उसके बाद ही आप दूसरे साइड से करोगे। पानी अंदर रह गया तो आपको साइनस हो सकता है, सर दुख सकता है। अब दूसरे साइड से वो आपको दिखाएगी। जलनेति आसान, सस्ता और मस्त उपाय है, आप रोज कीजिए। हमारे संस्था के कार्याध्यक्ष भी इसे रोज करते हैं। हमारे मेंटोर श्री राम कुमार जी यदि ज्वाइन हुए होंगे, वो ये जलनेति रोज करते हैं। जलनेति का पॉट आप मंगा लीजिए। अब अतुल जी की प्रेरणा से हम सारे हॉस्टल के बच्चों के लिए जलनीति क्रिया करवा के लेने वाले हैं। जो भी बच्चे हॉस्टल में आए हैं, वो अतुल जी कहते हैं अपनी जिम्मेदारी है, उनकी सेहत का ख्याल रखना हमें बहुत जरूरी लगता है। ऐसे समय में माँ बाप साथ नहीं है, बच्चे हमारे पास है, तो यह जलनीति अभी ऑलरेडी उन्होंने लक्ष्मी हॉस्टल में कर ली है। अब हम एक एक हॉस्टल में ये करेंगे, फिर हम स्टाफ के लिए भी करने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से माया आपको बता रही है। माया हमारे चिरंजीव फाउंडेशन की सीनियर फैकल्टी है। जब भी हम योगिक ब्रीदिंग करते हैं, हमारा चेहरा काम हो जाता है, हमारा पेशेंस डेवलप होता है, हमारा माइंड बॉडी ब्रेथ का सिंक्रोनाइजेशन होता है। और अभी आपने देखा कि जलनेति से लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल हमारा क्लियर हो चुका है। अब अंदर यदि कुछ पानी बचा है तो वो उसको निकालेगी। अब आपको मुझे बताना है कि जलनेति करने के पहले यदि रात को आप नाक में घी डालोगे रोज, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू माया। तो नेति का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है, कैसे करने का है आपको दोनों साइड से बता दिया है। लिमिटेशंस इसके सुन लो। शुड बी अवॉइडेड इफ यू हैड अ रिसेंट ईयर इन्फेक्शन, आपके कान में कोई इन्फेक्शन हुआ है, नासल सेप्टम ऑपरेशन, हमारे नाक का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आपको जलनेति अवॉइड करना है। अदरवाइज आप जलनेति कर सकते हैं। किसी को कहना है मुझे कोल्ड है तो मैं करूँ क्या, कोल्ड जल्दी भाग जाता है, हेडेक बंद हो जाता है, साइनेटाइटिस इससे अच्छा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस के सारे प्रॉब्लम इससे जाते हैं, अस्थमा बहुत क्लियर हो जाता है। ये प्रैक्टिस अभी कोरोना में को रोज करना है, उसके बाद आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, फिर रोज करने की जरूरत नहीं। होपफुली कोरोना अप्रैल में बंद हो जाएगा, तब तक आप इसको रोज कीजिए। Handing over it to question answer session, विनय मंत्री is with us. विनय, आपको जो क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो पूछे हैं, वो आप ले सकते हैं। अतुल जी हमारे साथ है, राम कुमार जी हमारे साथ होंगे, तो वो कुछ शेयर करना चाहते तो करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और क्वेश्चन आंसर के बाद हमारा ये होगा नाउ आप लोग। हाय सुनंदा जी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्रीदिंग टेक्निक्स। हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जो चीज हम दिन में 20,000 बार करते हैं, वो सही कैसे करनी है, और अगर हम कुछ समय निकाल कर ये कर सकेंगे तो व्हाई नॉट।
मेजोरिटी क्वेश्चंस जो भी हमें आए हैं वो लोगों के इस अराउंड है, और जैसे हमने फर्स्ट वो डॉग पोजीशन किया, और दैट इज नॉट अलाउड फॉर से हाई बीपी पेशेंट्स, राइट? तो ऐसे बाकी के जो एक्सरसाइजेस है जो लेट के करने हैं, जहां पर पैर उठा रहे हैं, या फिर जो वज्रासन में है जहां पर, तो क्या जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है या फिर किसी ने और कोई एक बीमारी का नाम बताया था, आई जस्ट, बैक पेन, लोअर बैक पेन, साइटिका पेशेंट्स, क्या वो लेट के जो एक्सरसाइजेस है पैर उठाने वाली वो कर सकते हैं? देखो, ये एक्सरसाइजेस चेयर में की जाती है। ओके, चेयर में बैठ के चेयर एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे ओके, चेयर सूर्य नमस्कार भी होते हैं। लेग चेयर पे से कैसे उठाने का है, आई एम सिटिंग ऑन चेयर, और दोनों हाथों को हम चेयर के साइड में रख देते हैं या यहाँ रखते हैं, और धीरे से, यदि आप देख सक रहे हैं, ये यहाँ तक ही उठाना है, यहाँ तक ही ओके, उठाना है। एक्सहेल करते वक्त आपको नीचे लेके जाना है, और आपको देखना है कि इसमें हमारे बैक के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस में कि प्रेशर जहां आना है वहीं आना चाहिए। जब सही। हम पैर को उठा रहे हैं तो यहां तक ही उठाएंगे, यानी चेयर के जो सिटिंग का जो कुशन होता है वहां तक ही पैर ऊपर उठेगा। पूरा प्रेशर सिर्फ हमारे थाई, नी और हमारे पैर पे आएगा, नॉट कि हमारे बैक पे। तो विनय, इसमें चेयर एक्सरसाइजेस है, समटाइम वी कैन हैव दैट सेशन, बट जिनको बैक पेन है उनको हमने भुजंगासन लिया ही नहीं है, क्योंकि बैक पेन में भुजंगासन नहीं किया जाता। भुजंगासन का शासन हम पर ने लिया नहीं है। शशांक आसन के इसमें आप थोड़ा सा झुक सकते हैं, आपको पूरा झुकने की जरूरत नहीं है। इसके चेयर पे बैठ के आपने हाथ ऐसे पीछे ले लिए, गर्दन को पीछे डाला है, इनहेल करने के बाद एक्सहेल, बस यहाँ तक झुकना है। जो सिटिंग लेवल है वो लोग कर सकते हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो Yes. बिना प्रेशर के अगर कोई एक्सरसाइज वो कर सकते हैं तो उन्होंने करना चाहिए। और चेयर एक्सरसाइजेस के लिए हमारे ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगे कि प्लीज जब भी चेयर एक्सरसाइज करो, आपकी चेयर कोई तो दीवार को लगा कर रखो, वरना पैर उठाने जाएंगे चेयर पीछे ना हो जाए, तो इतना ध्यान रखना। और ये ब्रीदिंग Correct. एक्सरसाइजेस, Absolutely. हाँ मतलब ऐसा नहीं हो पैर उठाए और पीछे गिर गए तो हानि नहीं होनी चाहिए, बस हमें योगा करना है बेहतर Very well सेहत के said. लिए। कॉर्पोरेट सेक्शंस में विनय, कॉर्पोरेट सेक्शंस में हमारे चेयर एक्सरसाइजेस बहुत चल रहे हैं, क्योंकि लोगों Okay. का बैठा काम होता है, उठने का Right. टाइम नहीं है, सुबह जल्दी पहुंचना है, योगा कर नहीं सकते। तो बैठ बैठ के जितने भी एक्सरसाइजेस है, दे आर नोन एज अ कॉर्पोरेट एक्सरसाइजेस ऑल्सो। तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का कभी भी हमें मौका मिलेगा तो वी विल कीप डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि सभी लोग अभी वर्किंग है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं और करना सीखना चाह रहे थे, इज टू फाइट विद कोरोना, टू इम्प्रोवाइज अवर ब्रीदिंग सिस्टम। सांस इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें अब पता चला है, नहीं तो सांस लेते आए हैं। सांस लेने में क्या सीखना है मैडम? कुछ भी। आपका योगा में आए तो कुछ भी सिखाओगे, सांस लेने को सीखना पड़ता है। सांस धीरे लेनी होती है, धीरे छोड़नी होती है। एनी अदर क्वेश्चन? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कब कर सकते हैं रूटीन में? मतलब सुबह करना है, दोपहर को, शाम को, खाने से पहले, खाने के बाद? आप जो भी आपका वर्किंग एक्सरसाइज है, वर्कआउट्स जिसको आपकी भाषा में कहा जाता है, जिम है, भागना है, दौड़ना है, ये सब करने के पहले आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं। और शाम को भी घर आने के बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइट खाया हुआ तो चलता है। और किसी ने लिखा है सोर थ्रोट एंड टॉन्सिल्स आर अफेक्टेड। तो नेति के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सोर थ्रोट के लिए किसका सवाल था? तो मैं आपको कह रही थी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम को। अभी 2 बार करना जरूरी है, रूटीन में आप 1 बार करो तो बस है। 15 मिनट ही लगते हैं। ओके। आज हमने देखो कितना सारा कवर कर लिया है ना, 1.25 घंटे में, तो 15 मिनट में हो जाते हैं। ओके। और क्या आप हमें क्रम बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सरसाइज करता है, मेडिटेट करता है, प्राणायाम करता है और ब्रीदिंग टेक्निक ऐड करना चाहता है अपने रूटीन में, तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए जो कि बेटर रहेगा? देखो, सीक्वेंस में हमारा लूजनिंग होता है, जैसे जॉगिंग है, ये सब है,
तो लूजनिंग एक्सरसाइज होने के बाद जब आपके आसन शुरू करते हैं उसके पहले आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स करने हैं। ओके तो क्या होता है विनय कि हम जब ब्रीदिंग टेक्निक्स कर लेते हैं तो आसन करते वक्त अपने आप हमारा ब्रेथ बॉडी प्राणा का सिंक्रोनाइजेशन होता है, जो आसन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवेयरनेस, सिंक्रोनाइजेशन। सो आसन प्रैक्टिस के पहले, जिम के वर्कआउट के पहले आपको ब्रीदिंग टेक्निक करने हैं, फिर आसन करते हैं, फिर शवासन करके फिर प्राणायाम करते हैं। लोग पहले ही प्राणायाम कर लेते हैं, प्राणायाम बाद में, क्योंकि सेज पतंजलि ने कहा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अभी नई जनरेशन समाधि के मार्ग पे है। आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल वे। स्पिरिचुअल वे के पहले यम नियम आसन प्राणायाम करके हम धारणा ध्यान करके फिर समाधि के पास जा सकते हैं। तो प्राणायाम हमेशा आसन के बाद ही करने हैं। ब्रीदिंग टेक्निक हमारे आसन के पहले होते हैं, तो आसन प्रॉपर किया जाता है। ये साइंटिफिक सीक्वेंस है। अंडरस्टूड। सो इफ आई गेट दिस राइट, सबसे पहले कोई तो हल्की वार्म अप एक्सरसाइज, उसके बाद आपका ब्रीदिंग टेक्निक, उसके बाद आपके जो भी आसन है वो करने हैं, जो भी फिर शवासन करके बॉडी को कर रिलैक्स करना है। जा रहे हैं, या राइट। बाद में प्राणायाम, फिर आपके बॉडी को शवासन करके बॉडी के टेंशन को रिलैक्स करना है। उसके बाद में यू कैन डू प्राणायाम और फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो। इन इफेक्ट मतलब जो भी जितना भी जिसको समय बनता है, ये सीक्वेंस है, जो भी चीजें कर सके ये सीक्वेंस में कर। और प्राणायाम को भी शास्त्रीय रीत्या सीखना बहुत जरूरी है। प्राणायाम राइट, यूट्यूब देख के प्राणायाम करना गलत होता है। हम हमारे प्राणों के साथ नहीं खेल सकते। सांस लेना और सांस छोड़ना इंपॉर्टेंट है। ये आज मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ गई, सबको पता चल गया कि मेरी सांस कितनी इंपॉर्टेंट है, सबको पता चल गया। सो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है। नेचर में खुले आम बैठ के जितना सांस लोगे और छोड़ोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। स्लो ब्रीदिंग, स्लो इनहेलेशन विथ एक्सहेलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने बार आपको ध्यान आए उतने बार आप स्लो ब्रीदिंग कीजिए। राइट। ओके, सो आई गेस मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो हो गए हैं, बट जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि जस्ट इन केस अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है एंड शी वांट्स टू डू दिस ब्रीदिंग टेक्निक्स, तो कौन से वो कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते? उनको ये जो डॉग ब्रीदिंग है नहीं करना है। एब्डोमिनल रिलेटेड कोई भी प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है। ओके, या दे कैन डू स्लो ब्रीदिंग एंड ऑल अदर ब्रीदिंग टेक्निक, जैसे हैंड इन आउट कर सकते हैं, हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग कर सकते हैं। लेग रेज ब्रीदिंग नहीं करना है। लेग रेज ब्रीदिंग हाँ वो नहीं करना है। हाँ, और करना है तो प्रॉपर योगा ट्रेनर के साथ। अंडरस्टूड। और मेजॉरिटी अपना जो पब्लिक है, एक तो बीपी होता है या डायबिटीज होता है, तो ऐसे कोई एक्सरसाइजेस है जो बीपी और डायबिटीज वालों ने नहीं करने चाहिए? मतलब डॉग ब्रीदिंग तो एक आपने बता दिया, करने चाहिए नहीं, उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने चाहिए, इससे बहुत कुछ एडिशनल करना चाहिए। डायबिटीज और बीपी के लिए, भस्त्रिका मैंने आज दिखाया नहीं है, भस्त्रिका नहीं करना होता है। भस्त्रिका जो होता है वो नहीं करना होता है बीपी वालों के लिए, क्योंकि उसमें है उन्होंने भ्रामरी करना चाहिए। भ्रामरी। ओके। हमारे जो मेंटोर है एडवाइजर राम कुमार जी, वो रोज 108 बार भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। राइट। Has Ram Kumar ji joined us today? Has he been able I don't know, you have to check, क्योंकि मैं मेरे सेशन में इतनी इन्वॉल्व थी। I can see he is joined through iPhone. I can ask him to unmute if he'd like to say something. So he can share his experience. He has a great experience, complete reversal of age, complete energy, और ये सब उनको आया है योगा से। आज योगा का प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं योगा एजुकेशन के लिए। He is helping me for lot of my social projects in yoga. Wonderful. हम लोग निवारा में योगा दे रहे हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस को दे रहे हैं। तो राम कुमार जी is here and you can share your experience. People will get enlightened and they will start doing it. Thank you so much. No, Dr. Sunanda, I'm not going to speak. But I wanted to speak. You have already spoken. My best wishes to you all. My best wishes to you all. Thank you so much, sir. Okay.
Atul Bhau, would you like to Carry on. say something? आज का यह सेशन सुनंदा भाभी और राम कुमार जी के प्रेरणा से हमने लिया, और मुझे लगता है कि जब हम आज आजू बाजू का माहौल देखते हैं, कोरोना की बातें होती है, रेमडेसिविर की बातें होती है, वैक्सीन की बातें हो रही है, मगर हमारा जो यह एक पुराना साइंस है, एंशंट साइंस है, मुझे लगता है वी हैव टू गो बैक टू इट। और सुनंदा भाभी ने सही कहा कि हम यदि इस साइंस को जागरूक करें, इस साइंस को अच्छे ढंग से आत्मसात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना ही नहीं बल्कि आगे चलकर और कुछ जो आने वाले हैं हमें छू पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का यह जो वेबिनार है वो आप सभी को पसंद आया होगा, और हम यहाँ पर ही नहीं रुकेंगे बल्कि हम आगे चलकर भी इसे प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले नेक्स्ट डे हम इसको YouTube पर रिकॉर्ड करके इसकी लिंक शेयर करें, और आने वाले भविष्य में भी हम हेल्थ रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसको लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू सुनंदा भाभी, थैंक यू राम कुमार जी फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू। हमारी क्लोजिंग प्रेयर रहेगी अतुल, क्योंकि योगा की शुरुआत भी प्रेयर से होती है, एंड भी प्रेयर से ही होता है। मैं विनय, सभी पार्टिसिपेंट्स, माया और अतुल और विद्या प्रचारक की आभारी हूँ। अब हम क्लोजिंग प्रेयर बोलेंगे। माया, ओम सर्वे भवन्तु, ऑल टुगेदर राम कुमार जी भी बोलेंगे। क्लोज योर आईज, adopt namaskar mudra, take a deep breath in, breathe out, cool down. Om sarve bhavantu sukhinah, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे सभी भाई बहनों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Thank you all participants for being here, for such active participation and questions. जाने से पहले सुनंदा जी, एक मेरा फाइनल क्वेश्चन है, so I forgot to ask you. Can I? Yeah. तो जल नीति जब हम करते हैं, राइट, तो वो बेंड होकर करना है या वो सीधे होकर करना है? नहीं, बेंड होके, आपको बेंड ही होना है, या एंड टिल्ट करना है। आपका एक साइड, जिस साइड से कर रहे हैं टिल्ट करना है, पर बेंडिंग प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर बेंडिंग नहीं हुआ तो वो गलत हो जाएगा। जो पोजीशन मैंने आपको दिखाई थी और माया ने जैसे डेमोन्स्ट्रेशन, माया यू जस्ट शो बेंडिंग, just bend, how to bend. Understood. Thank you. Yes, got it. And one more question around it. जब वो पानी निकालते हैं तो does she exhale ऐसे या just head movement है? नहीं, पूरा जैसे फोर्सफुल एक्सलेशन है। ओके, अंडरस्टूड। तो अंदर का पानी निकल जाता है, फोर्सफुल। और बेसिन के पास करते हैं तो प्रॉपर पोजीशन अपने आप आ जाती है। ओके, ऑलराइट, यस, अंडरस्टूड। Thank you so much for your time. Thank you, Kumar ji. Thank you, Atul. Have a blissful. Thanks, Maya. Thank you. Have a blissful lockdown period. And practice yoga every day. Stay healthy. Yes. Yoga karo, raho nirog. Thank you. Karo yoga, raho nirog. Yes. Bye. Bye. I'm ending the meeting for all. Thank you. Thank you.